to our prelims PYQ series in which we are solving PYQs from 1979 to 2024. Here we are decoding PYQ prelims, which is of 45 plus years and in a theme-wise and subject-wise way. The same question will appear on your PYQ portal on Edukami website, and the class notes of that theme will be provided to you. The link is in description below. Now, I just want to remind you that our PSP Film Support Program 2025 still going on. You can check out its features. Today's topic is basically miscellaneous topic. It is miscellaneous. It has some questions which cannot be categorized into something concrete. So let's start. Question number one. According to Constitution of India, a person who is eligible to vote, according to Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of that state. Now इस क्वेश्चन में आते हैं, अगर आप देखें, a person who is eligible to vote, कब होते हैं कोई person eligible to vote? In 18 years. But when you talk about making a minister, मिनिस्टर मतलब आपको बेसिकली एमएलए बनना होगा या एमपी बनना होगा। रिक्वायरमेंट क्या है? यू शुड बी 25 ईयर्स ऑफ एज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगर कोई 18 साल में एलिजिबल हो गया है, हाउ कैन दैट पर्सन बी अ मिनिस्टर? अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आरपीए 1951, अ पर्सन convicted of criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified. Is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Serious heinous offense, 2 years ka, for example, if a person gets a more than 2 years in jail as an imprisonment, then what will happen? Then it will have 6 years of cooling apart from the serving sentence, and जो 6 साल का कूलिंग पीरियड एंड होने के बाद a person can contest again. तो ये भी नहीं है. The person is not permanently disqualified. Answer is D. Moving to question number 2. So before that, I just want to tell you what are PSP's components and its benefits. You can see here in the screen, you can take a screenshot that will have practice test, analysis sheet, marathon session, book reading session, revision sessions, sectional test, full length test, मिक्स टेस्ट ऑफ यूपीएससी करंट अफेयर्स रिवीजन 1 साल का, सीसैट सपोर्ट भी होगा, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होगा, टेस्ट डिस्कशन एंड एट लास्ट प्रयास. So the USPs of our earlier PSP were 45% of the students got qualified, 50% were direct hit, increasing confidence, and it boosted also accuracy. Moving to next question, question number 2. आज in 2020, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. A constitutional government is a government. A constitutional government by definition is a dash. Now constitutional government हमेशा हमेशा टॉपिक में रहता है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट है. अगर मैं बोलूँ तो constitutional government मतलब it is a limited government when it is when the state is limited by the constitution. The answer is D. Moving to next question, which is question number 3. Which one of the following statements is correct? Asked in 2013. In India, the same person cannot be appointed as a governor for 2 or more states at the same time. क्यों भाई? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ. थर्ड सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. The judges of High Court of the states in India are appointed by governor of the state, just as the judges of Supreme Court are appointed by president. No, I just want to remind you that judges की अगर बात करें, judges of High Court and Supreme Court, both are appointed by president. ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ. थर्ड पे आते हैं. नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर हिज और हर पोस्ट. नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसीजर नहीं है जो कि ये बताए गवर्नर का रिमूवल कैसे हो. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर इज सी. बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, we are launching our CSAT program by Devendra sir, which is based on complete UPSC pattern. It will have 50 plus classes. It will have 10 tests, digital booklet, as well as worksheets. So it is the new batch starting from 21st of December. You can check out the features by calling us. So moving to next question, which is question number 4. Union territories are not represented in the Rajya Sabha. क्यों भाई क्यों represent नहीं होगा? गलत है. It is within the purview of Chief Election Commissioner to adjudicate the election dispute. इलेक्शन डिस्प्यूट एजुकेट करने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन डिस्प्यूट की नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं है, जबकि कोर्ट्स की हैं. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली. और दिस इज द लाइन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यूपीएससी ने जब भी ऐसा लाइन मेंशन किया है, जनरली वो स्टेटमेंट गलत होता है. यू हैव सीन, ये भी गलत है. द आंसर इज नन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 5. The Advocate General in India is appointed by the President upon the recommendation of Governor of the concerned state. Now, you know, Article 76 talks about Attorney General at the union level.
and there is Advocate General the state level. Now, Advocate General is appointed by governor, not by president. ठीक है, तो ये statement गलत है. Second, as provided in Civil Procedure Code, the high courts have original, appellate and advisory jurisdiction at the state level. Now, I just want to tell you that high court के पास कोई भी advisory jurisdiction नहीं होता. Advisory jurisdiction Supreme Court के पास होता है, High Court के पास नहीं. This statement is also wrong. Answer is D. Moving to next question. सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ना. अगर इसमें देखो डिफेंस पे तो नहीं लग रहा है, एनवायरमेंट तो बिल्कुल नहीं, होम अफेयर्स भी नहीं है, बचा साइंस एंड टेक. याद रखिएगा 2003 में है. हो सकता है कि फैक्चुअल इतना पढ़ के जनरली समझ में आ जाता है, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा. सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 7. कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और सीजीआई 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है. एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है ये पूछा है. तो आप देख सकते हैं, तो जजेस सबसे ऊपर आएंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैं एक अच्छे पोजीशन में लिख सकता हूँ, बिकॉज सीजीआई इज मोस्टली इक्विवेलेंट टू स्पीकर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. अगर 4 को मैं सबसे ऊपर रखूं, तो आई एम लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस बी एंड सी. तो 4 के बाद अपने आप 3 गेट कवर्ड. 4 के बाद 3 आया क्योंकि दोनों में. अब 1 और 2 के बीच की लड़ाई है ये. जब इसकी बात करें तो इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, दे आर एट द हायर पोस्ट कंपेयर टू कैबिनेट सेक्रेटरी. आंसर इज 4 3 2 1 in this manner. CJI, Union Cabinet Minister, Chief Election Commissioner, and then Cabinet Secretary. The answer is C. Moving to next question, which is question number 8. Of the 4 forms of the political protest mentioned below, which one is derived from the name of the person who used it as a political weapon for the first time? अगर मैं बात करूं, देखो, तो जो सबसे पहला नाम टाइप का लग रहा है, इसमें सिर्फ एक इंग्लिश नाम है, वही नाम लग रहा है. घेराव इज नॉट अ नेम, बंद इज नॉट अ नेम, हड़ताल इज नॉट अ नेम. बट बॉयकॉट, जॉफरी बॉयकॉट का नाम सुना ही होगा, उससे समझ में आ जाता है कि बॉयकॉट एक सरनेम लोग यूज करते हैं, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में. तो आंसर इज ए. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट टू हिंदी, द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज. अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो दिस इज 1993 में पूछा गया था. ठीक है, इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो वी हैव ऑल्सो बांग्लादेश एज आर नेबरिंग कंट्री, जहाँ बांग्ला बोला जाता है, बंगाली बोली जाती है. तो वो ज़्यादा सूटेबल है कि बंगाली इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर. तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं है. उर्दू में हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन माइंड यू बता दूं आपको कि पाकिस्तान में जो उर्दू बोली जाती है वो एटलीस्ट अराउंड 7% है. अराउंड 50% जो भाषा बोली जाती है पाकिस्तान में, दैट इज पंजाबी. ठीक है, तो इट इज अ मिथ दैट उर्दू बहुत ज्यादा बोली जाती है पाकिस्तान में. बट इफ आई टॉक अबाउट बंगाली, तो लगभग पूरे बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10. द एबॉलिशन ऑफ आईएएस एंड आईपीएस एज रिकमेंडेड बाय द विच कमिटी. ये क्वेश्चन पूछा गया था 1993 में. एंड बहुत रेडिकल रिकमेंडेशन है कि एबॉलिश ही कर दो आईएएस और आईपीएस. जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी ऐसा रिकमेंड नहीं करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट की कमेटी होगी, वही ऐसा रेफर कर सकती है या वैसे ही रिकमेंडेशन दे सकते. When we talk about this, Raj Mannar Commission is more suited because it was by state of Tamil Nadu, made by Tamil Nadu, which recommended the abolition of IS and IPS because they are all India service and they were the acting as the agents of the center as per the committee. Moving to next question, which is question number 11. The first non-Congress government to come in power in any Indian state. Now ये 1987 का क्वेश्चन है. आपको ध्यान होगा कि हाल ही में लगभग 4-5 साल पहले 2019 के करीब यूपीएससी ने फिर से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था ट्रेंड वाइज, जहाँ उन्होंने कुछ पार्टी का नाम दिया था. राइट, तो अगर आपको ये पता है फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट टू कम इन पावर इन एनी इंडियन स्टेट, तो आप वो क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, इसका है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन केरला. इट वॉज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया आफ्टर द कांग्रेस. इट हैड 16 सीट्स इन लोकसभा. आप देख सकते हो कांग्रेस का जबरदस्त डोमिनेंस था उस टाइम. एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्टी वाज द लेफ्टिस्ट पार्टी विच इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला. एंड केरला में ही सीपीआई ने पहली बार गवर्नमेंट फॉर्म की थी, जिसको बाद में टॉपल कर दिया गया लगभग 1957 में. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज उर्दू एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है. जम्मू एंड कश्मीर ही होगा, बिहार हो नहीं सकता, बिहारी है. मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है लगभग, राजस्थान में राजस्थानी. तो अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर इज मोस्ट सूटेड ऑप्शन, राइट. तो हियर जम्मू कश्मीर इज द आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 13. नेशनल एंथम वाज रिटन बाय. बहुत हलवा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर है. फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द टर्म फोर्थ एस्टेट रिफर्स टू. फोर्थ एस्टेट की बात करें तो ये फोर्थ एस्टेट मतलब फोर्थ पिलर की बात हो रही है. तो फोर्थ पिलर जो है प्रेस होता है. ऑलवेज रिमेंबर, फोर्थ पिलर या फोर्थ एस्टेट इज प्रेस. द आंसर इज डी. So with this, we conclude our miscellaneous video.
I hope you're liking the series. Like, comment, share, and subscribe us, and tell us if the video is helping you. Thank you.